Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, a teacher of biology subject. Today I have brought the new chapter, that is a chapter number 10 from the Maharashtra State Board, and the name of chapter is the Human Health and Disease. This is very valuable chapter in terms of a NEET as well as CET, as well as it is very valuable in the 12th standard according to the marks weightage, and it is fully related to the medical field. Today in this chapter we will see the introduction of chapter, and I'll tell you introduction of chapter in very detail. Yes, आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, और डिटेल में हम बेसिकली इन्फेक्शन क्या होते हैं, डिसीजेस क्या होते हैं, सिंड्रोम क्या होते हैं, इन तीनों चीज के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन. So let's start introduction of chapter. First of all, in this lesson we have to describe basically two different words. First is a health and second one is disease. तो health क्या होता है और disease ये दोनों क्या होता है. health मतलब हम सिंपली कहते हैं कि health एक ऐसी फिटनेस है हमारी बॉडी में, ऐसी फिटनेस है जिसमें तीन चीजें कंपलसरी होनी चाहिए. एक तो फिजिकली, मेंटली और सोशली. चलिए हम साइंटिफिकली वर्ड्स में देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health can be defined as, according to World Health Organization, health can be defined as, it is nothing but physical, mental and social well-being of person is called health. According to the World Health Organization के मुताबिक अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों चीजों में फिट हो तो ही आप हेल्दी कहलाते हो. और अगर आप इन तीनों चीजों में से कोई भी एक फैक्टर में अगर आप पॉजिटिवली फील नहीं करते हो, फिट नहीं हो, तो आप क्या हो, आप हो डिसीज, मतलब आपको डिसीज है. सिंपली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, when you are physically, when you are mentally as well as when you are socially, you are perfect, you are fit, then you are called as a health. What is physical? Physical means neither you have a bacterial disease nor you have a viral disease, and not even you are having fungal, protozoal or any diseases. Even though you are not having genetical diseases, आपको कोई भी डिसीज आपकी बॉडी में नहीं है, yes, तो आप फिजिकली फिट हो. मेंटल इन द सेंस you are psychologically you are well prepared, psychologically you are fit to your body, then this is about mental. And third about social means what you have attitude towards the society. Is your attitude towards the society is a perfect? If it is perfect, if it is a good one, then you are socially also you are perfect. It means physically, mentally and socially if you are well-being, then you are healthy. Otherwise, if you are having any kind of a diseases, if you are having infection, disease or syndrome, then you are not healthy, you are in the category of a disease. This is the basic concept about the chapter. When you are physically, mentally and socially well-being, you are healthy. But when you are either physically, either you can say mentally or either socially, you are not well, then you are suffering from particular disease. Then what kind of disease, how many variety of diseases are there, we will discuss in detail about. Yes, तो ये थी सिंपली डेफिनेशन. किसके बारे में? ये डेफिनेशन थी हेल्थ के बारे में. हमें इस इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करना है डिसीजेस के बारे में. ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन तो आप लोगों ने अब समझ लिया. अब हम चलते हैं डिसीजेस के बारे में. तो मैं आपको डिसीज भी समझाऊं उसके पहले मैं आपको तीन अलग अलग चीजें बता देता हूँ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन infection, disease, yes, that's true. What is meant by infection? What is meant by disease? And what does it mean by syndrome?
डू यू नो दिस थ्री थिंग्स और हैव यू हर्ड दिस थ्री थिंग्स इन योर लाइफ? तो देखिए तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज द स्टेज in which causative agent enter in our body and start multiplying in our body until it produces sign and symptom. This stage is called as an infection. ठीक है। मान लो एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या तो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर वो मल्टीप्लाई होते जाता है। मान लो एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज करता है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारी बॉडी में आने के बाद 4-5 दिन तक वो बैक्टीरिया सिर्फ हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होते रहता है, उनका नंबर बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 100, 100 से 500, 1000, लाखों, करोड़ों ये बैक्टीरिया से मल्टीप्लाई होते जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन अभी तक साइन एंड सिम्टम नहीं आया है। तो जब तक साइन एंड सिम्टम नहीं आता है, जब ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तब से लेके जब तक साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते हैं बॉडी में, इस पीरियड को हम कहते हैं इन्फेक्शन पीरियड। यस, इस पीरियड को हम कहते हैं इन्फेक्शन पीरियड। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ऑर्गेनिज्म को बॉडी में अंदर आने से लेके साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन पीरियड। व्हाट इज मीन बाय डिसीज? व्हेन ऑर्गेनिज्म damages our body parts, our body tissues. When organism damages our body parts, our body tissues and start appearance of sign and symptom, this concept is called disease. Disease क्या होता है? ठीक है, disease क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद, जब वो हमारे बॉडी टिश्यूज को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है और हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम, जैसे हम चिन्ह और लक्षण बोलते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं डिसीज। तो इन्फेक्शन में ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तब से लेके जब तक साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं तब तक होता है इन्फेक्शन, और जब साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं तब उसे हम कहते हैं डिसीज। सिंड्रोम ये इन दोनों से अलग है। सिंड्रोम मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ various sign and symptoms in a single condition, it is called syndrome. Collection of various sign and symptoms in a single condition, it is called syndrome. मतलब एक समझ लीजिए आप कि जैसे हेडेक होता है, यस हेडेक होता है, फिर मतलब हेडेक मतलब सिर दर्द होना, फिर चक्कर आना मतलब वर्टिगो होना, तो चक्कर आना, सिर दर्द होना, ज़्यादा फीवर आना, ये मलेरिया के लक्षण है, ठीक है। फिर पेट दुखना, ये टाइफाइड के लक्षण है। पेट दुखना, फीवर आना, ये टाइफाइड के लक्षण है। चिल्स होना, यू कैन से चिल्स होना, ये बेसिकली मलेरिया टाइफाइड दोनों में होता है। फिर कफिंग होना, ये निमोनिया के, टीबी के लक्षण हो सकते हैं, सर्दी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सभी के सभी सिम्टम एक ही अगर कंडीशन में आ जाए तो इसे हम कहेंगे सिंड्रोम, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? सिंड्रोम। सिंड्रोम कुछ ऐसे हो सकते हैं, सार्स भी सिंड्रोम है, एड्स भी सिंड्रोम है, ठीक है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो कोरोना इन्फेक्शन है ना, कोविड-19, ये वो भी सेम कैटेगरी में आता है, लेकिन ये सार्स उससे पहले का था। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एड्स से अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों के दोनों सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें 7-8 बीमारियों के लक्षण एक ही बीमारी में जब दिखते हैं तब हम उसे कहते हैं सिंड्रोम, ना कि इन्फेक्शन, ना कि डिसीज। बेसिकली जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनसे उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपने बेसिकली इतने दिनों से आपको क्या फील हो रहा था और कौन कौन से सिम्टम आपके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर उनसे ये सब पूछते हैं, तो सिम्टम्स के आधार पे वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं माइंड में। मान लो डॉक्टर एक ब्रेन के अंदर एक डायग्राम बना के बैठा हुआ है, डॉक्टर आपसे पूछ रहा है कि क्या फील हो रहा है, आप बोलोगे कि सर मुझे बेसिकली हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठंडी काफ़ी बज रही है। तो डॉक्टर जैसे ही आप
बोलोगे मुझे फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर माइंड में कंक्लूजन लगाएगा आइदर टाइफाइड, आइदर मलेरिया, आइदर फ्लू, आइदर इन्फ्लुएंजा, ऐसे 3-4 रो डायग्राम ड्रॉ करोगे। फिर आप बोलोगे मुझे चिल्स हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठंडी काफी बज रही है, तो टाइफाइड और मलेरिया। लेकिन वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये मलेरिया। तो मतलब डॉक्टर बाकी सारे डिसीज को साइड में करके एक डिसीज के ऊपर फोकस करता है, एक या दो। फिर डॉक्टर एक दो आपको लेबोरेटरी टेस्ट कहेगा, और लेबोरेटरी टेस्ट होने के बाद डायरेक्टली फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आपको ये डिसीज है, आपको ये वाली इन्फेक्शन है, और फिर डॉक्टर उसके ऊपर फाइनली उनकी परफेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज इन्फेक्शन, डिसीज एंड सिंड्रोम। आई होप सो आप लोगों को क्लियरली समझ गया होगा। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि वन बैक्टीरिया एंटर इन वन पर्सन, यस, one bacteria enter into one person. 5 days only that bacteria took to multiply in his body. Yes, only 5 days it took, that bacteria took to multiply in that host body. And after 5 days that bacteria start the damaging tissue and organs of the body, especially some tissues of the body like blood cells, epithelial cell, etc, etc. And sign and symptoms starts coming on the body parts. And then now from infection it is turned into the disease, it is turned into the disease. So जब एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, 5-6 दिन वो बैक्टीरिया खुद की बॉडी को, खुद की एंटीजन को मल्टीप्लाई करने में लगाता है, तो वो 5-6 दिन को हम कहते हैं इन्फेक्शन। और जब वो 5-6 दिन के बाद इन्फेक्शन साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, बॉडी के टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं डिसीज। और सिंड्रोम तो काफी अलग है इन दोनों से, मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं आपको बताता हूं इन्फेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। इन्फेक्शन कैन बी वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैन बी वायरल इन्फेक्शन, इट कैन बी bacterial infection, it can be protozoal infection. This means same thing, infection. And it can be the fungal infection, viral done, bacterial done, protozoal done, fungal done. Sometimes it can be caused due to if you say amoebal, or you can say parasitic. So parasitic basically comes under protozoa. You can write like that way, parasitic infection like amoebiasis, ascariasis, worm infection, etc, etc. So infection can be the viral, bacterial, protozoal, fungal, parasitic. Now come to the topic, how many variety of diseases are? Diseases के कितने प्रकार हैं? तो diseases के काफी सारे प्रकार हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए जेनेटिकल डिसीजेस, जेनेटिकल डिसीजेस, फर्स्ट वन congenital diseases, STD means sexually transmitted diseases, and you can say infectious diseases. अभी infectious diseases क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। Generally you can say hormonal diseases, deficiency diseases, chromosomal diseases. अभी ये देखिए जेनेटिकल डिसीजेस मीन्स एनी डिसीज विच इज caused ड्यू टू द डिफेक्ट इन DNA, डिफेक्ट इन RNA, डिफेक्ट इन द जीन्स, डिफेक्ट इन द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। किसी भी तरह से अगर जीन्स में, DNA में, RNA में, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में डिफेक्ट है तो उसे हम कहेंगे जेनेटिकल डिसीज।
Congenital disease means disease which is right from the birth. जन्म लेते से ही अगर कोई बीमारी है तो उसे हम कहेंगे you can say congenital diseases. STD means sexually transmitted disease. They are also called as the venereal diseases. जो डिसीज सेक्स कांटेक्ट के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, आल्सो नोन एज अ वेनेरियल डिसीज। और उसके बाद इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब ये वाले से। Infectious disease can cause due to bacteria, virus, protozoa, parasite, fungi, helminth, you can say worm, etc., etc. Hormonal diseases, the disease which is caused due to the deficiency of hormone or efficiency of hormone, it is called hormonal diseases, like a hyperthyroidism, hypothyroidism, gigantism, dwarfism, Siemens disease, etc., etc. Then deficiency diseases, the diseases which are caused due to the deficiency of particular mineral, particular metal, particular heavy element, trace element, etc., etc. अगर हमारी बॉडी में कोई मिनरल की कमी हो जाती है तो बढ़ जाता है, तो उससे जो डिसीजेज होती है वो होती हैं डिफिशियंसी डिसीज। और आखिरी में क्रोमोसोमल डिसीज मींस chromosomal diseases are those diseases which is due to the you can say defect in the chromosome or abbreviation in the chromosome. अगर क्रोमोसोम में कहीं डिफेक्ट आता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसीजेस। अगर बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर में मेल में एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, टर्नर में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, डाउन सिंड्रोम में 21st नंबर पेयर पे एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम क्रोमोसोम आता है, मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं हम उसे। और अगर कुछ और कहें जैसे पटाउ सिंड्रोम, क्रूडू चूर सिंड्रोम, एक्सेट्रा, काफ़ी सिंड्रोम है। कुछ हेरिडेटरी सिम्टम, कुछ हेरिडेटरी डिसीजेस भी होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, डायबिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिजीज भी होते हैं। लेकिन ये सारे डिसीज जेनेटिकल और हार्मोनल इनसे रिलेटेड हैं। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर। हमारे स्टेट बोर्ड में इतना नहीं दिया, हमारे स्टेट बोर्ड में हेल्थ और डिसीज इन दोनों की मतलब डेफिनेशन ही दी है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना डिटेल में इसको डिस्कस किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली हर नई वीडियो पाने के लिए उसके पास में घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।